Good morning, dear students. Hope you all are fine and feeling refreshing after a winter break. So, well, we have UTs from 27 as you got the message, and we have syllabus chapter number 7, 8, and 9 in science. So, today we will revise chapter 7, some important questions of chapter 7, that is, importance of water. In this chapter, we studied about importance of water for plants, for animals, for all living beings, and some domestic uses and some industrial uses for irrigation, for crops. These are some important topics which we discussed in this chapter. Hope this chapter is clear to you. And today we are going to discuss some important questions, methods of drawing groundwater, water supply in the cities. Yes, let us start. Ready? Okay. First, you have to choose amphibious animal. Fish, frog, hydrilla. Amphibious means the animals which can live both in water and on land. Two types of animals, mainly according to their living, कि कहाँ पे वो रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है. फर्स्ट वन इज़ द एक्वेटिक एंड सेकंड इज़ द एम्फीबियस, जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं. एक्वेटिक मीन्स विच लिव ओनली इन वाटर and amphibious which can live in water and on land also. These are called amphibious animals, and out of these, hydrilla, frog and fish. Frog is the amphibious animal. So you have to learn the examples of aquatic and amphibious animals. इंटरनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके यूटी में, इसलिए आपने प्रिपेयर रहना है. कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल्स हैं, जो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए, वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सेकंड, अबाउट -% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियंस. कितना परसेंट है सी और ओशियंस के अंदर? दैट इज 97%. एंड 3% जो है वो फ्रेश वाटर है. 97% of total water that is present in seas and oceans, and our earth is covered with 75% of the 3/4 of earth is covered with water, and out of that 97% is covered with seas and oceans and 3% is fresh water on the land. Water trapped between underground rocks is called. जो वाटर ग्राउंड के नीचे है, ग्राउंड में है, रॉक्स के बीच में ट्रैप्ड है, दैट इज़ कॉल्ड. जो रेन वाटर है वो भी ग्राउंड में जाता है, तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेम ऑफ डैश प्लांट इज इटन एज वेजिटेबल. दैट इज लोटस प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं? कमल ककड़ी. आपने डिस्कस किया था हमने चैप्टर में भी. दैट इज द स्टेम ऑफ लोटस प्लांट इज इटन एज वेजिटेबल, कमल ककड़ी. नेक्स्ट वही क्वेश्चन, अब थोड़ा सा फॉर्म भी चेंज होके आ सकते हैं. जैसे एम्फीबियस एनिमल्स अगर आपको पता है कि क्या होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स चूज करना, और डायरेक्टली एम्फीबियस एनिमल्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये क्वेश्चन भी. डिफरेंस भी आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्वेटिक एनिमल एंड द एम्फीबियस एनिमल? Animals, as it is clear to you, we have discussed, animals which can live both in water and on land are called amphibious animal, like turtle, frog, crocodile. Right? Different ways of drawing out groundwater. Groundwater को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? Some steps are there. Step wells, जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था. Well having steps. Water wheel, जो आपने प्रोजेक्ट भी बनाया था. वाटर व्हील हमने बहुत अच्छे से किया था. दैट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम वाटर व्हील का यूज़ करते हैं. ग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं. बाय वेल, बाय यूजिंग पुले. ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट इज, as you know, water is important for plants as well as for the animals. So what is the importance of water for the plants only? प्लांट्स के लिए क्या यूजेस हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, द बेसिक थिंग
we require carbon dioxide and water in the presence of sunlight. So water is essential component which is required for the process of photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants can prepare their own food, right? Next, water is habitat for many plants. Yes, we know बहुत सारे plants हैं जो water में ही grow करते हैं, like duckweed, hydrilla, lotus, all these are growing in the water. For germination of the seeds, sprouts बनते हैं, germination होती है, means the journey of seed from seed to the journey of a plant from seed to the seedling and then to a big plant, that is tree. Okay. Nutrients dissolved in water are absorbed through the roots. न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं हम वाटरिंग कहाँ करते हैं, रूट्स में. सारा पानी पहले रूट्स में जाता है और रूट्स में जो भी जो हम सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पहले वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेशन हो रही है वो विदाउट वाटर की हेल्प से नहीं हो सकती. सेम इज़ द प्रोसेस फॉर हेयर प्लांट्स. जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट हैं, जो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हम देते हैं, वो सबसे पहले वाटर में डिजॉल्व होते हैं और फिर रूट से होते हुए पूरे प्लांट पार्ट्स में जाते हैं. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. वही बात आ गई कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर व्हील. अभी हमने डिस्कस भी किया. अब ये देखो फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई. वही क्वेश्चन है कि आप ग्राउंड वाटर को कैसे ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे यूज़ वाटर व्हील का क्या है. वहाँ पे भी हमने वन पॉइंट डिस्कस किया था, बाय यूजिंग वाटर व्हील. और यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर व्हील. वाटर व्हील इज़ यूज्ड फॉर ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन. नेक्स्ट, हाउ इज़ द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो कैसे पास आउट होता है. हम कहते हैं ना बहुत सारा पानी पीना चाहिए, 9 to 10 ग्लासेस वाटर अ डे. और बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो फूड डाइजेशन भी इजीली नहीं होगी और जो वेस्ट है वो कलेक्ट होगा और एक्सक्रीट आउट नहीं होगा. इसलिए हम बीमार भी होते हैं. वो जर्म्स जो हैं जो इन्फेक्टेड जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो इन सॉरी जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट होते रहेंगे और उन वेस्ट मटेरियल को कौन हेल्प कर रहा है निकालने में, वाटर. सो वेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड गेट एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड द स्वेट. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टेप वेल. स्टेप वेल is a well having steps on all the sides to enable people to go down to fetch water. Means वाटर लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, स्टेप्स में नीचे जाना पड़ता है और फिर हम वाटर लेके ऊपर आते हैं. ऐसा पहले होता था, स्टेप वेल्स का यूज़ होता था और इनको हम सेकेंड नेम देते हैं बाउलेज. नेक्स्ट इज हाउ इज़ वाटर सप्लाइड इन सिटीज़. सिटीज़ में पानी कैसे सप्लाई होता है, कैसे सप्लाई होती है वाटर की. ग्राउंड वाटर है वो भी हमने डिस्कस किए कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं. तो एक वेल प्लान्ड सिस्टम होता है. पहले कोई पाइप्स का नेटवर्क नहीं हुआ करता था, इसलिए हर जगह वाटर अवेलेबल भी नहीं होता था. और ये पॉसिबल कैसे हुआ है, थ्रू द नेटवर्क ऑफ पम्प्स एंड पाइप्स. ये पाइप्स और पम्प्स की हेल्प से ही जो वाटर है वो हर जगह पे आपको अवेलेबल हो जाता है. आपके घर के डिफरेंट रूम्स में, बाथरूम में, वॉशरूम में, किचन में, जहाँ पे भी आप ये फैसिलिटी चाहते हैं वो पहुँच जाती है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स. वाटर इज सप्लाइड इन सिटीज़ थ्रू अ वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम. इन दिस रिवर वाटर को हम पहले प्योरीफाई करते हैं. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. पहले उसमें से जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को सेपरेट आउट करना है, फिर जो दूसरे जार्म्स हैं उनको सेपरेट आउट करना है, जो सॉलिड जो थोड़ा सा सॉफ्ट है, जो लाइट वेट में होते हैं उनको सेपरेट आउट करना है. तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं. और जब वो वाटर जर्म फ्री हो जाता है, क्लीन हो जाता है, फिट हो जाता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, तो उसे होम्स और ऑफिसेज में भेज दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पम्प्स एंड पाइप्स. सो इन दिस वे वाटर इज सप्लाइड इन cities. So these were some questions. You have to read the chapter carefully and you have to practice
questions in this way. You some internal questions and part A to E also. Okay, so have a good day, read the chapter, and I will send assignment also. You can try it in your rough notebook. Thank you. Have a nice day.